Hi, Techi. Good morning. Hi, Anshika. Good morning. By the time few more people join in, अगर आप लोगों को कोई question है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो अभी. मैंने kind of if you want to ask any question regarding IR or how to write answers, anything that you want help for your mains, अभी पूछ लो ताकि we can just address it right away. सबसे पहले तो if you don't have any questions, so I have questions. The general जो understanding है कि if students are good with economic GS3, then they do have problem with GS1. Hi Jitendra, they do have problem with GS1, and people who are comfortable with GS1, they have problems with GS3. So my question right now is that how comfortable are you guys with GS1? Hi Parul, good morning. तो GS1 के साथ आप लोगों का क्या है सीन? Are you done with it? Are you comfortable? Hi Dipesh. Are you comfortable with it? कहाँ तक बाकी है? क्या है situation? What is the situation for GS1? Okay, it seems that nobody is going to write, which is fine. If you don't want to share that, then एक simple सा question है, आप अगर कोई और doubt है आपके mind में regarding IR or anything else about answer writing, आप पूछ सकते हो अभी, क्योंकि आज we'll cover up your last daily answer writing of IR. So आज शाम से we'll start with internal security. You have content issues in what? GS1. Too much content or too many sources? Timing किया अपने आप को अभी तक? Have you timed yourself for writing the questions and everything? And in the timing, what is the situation happening? क्या चल रहा है? Problem क्या है? Don't worry about the marks right now. Don't worry about the marks. Are you happy with the fact that you were able to finish the paper and you were able to give a good attempt? That's two things that you have to be worried about. पेपर खत्म करना और दूसरी चीज है कि कंटेंट अच्छा रखना. ये दो चीज अगर आप इंश्योर करोगे, मार्क्स अपने आप आएंगे. डोंट वरी अबाउट द मार्क्स राइट नाउ. जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट. वो चीज कभी भी दिमाग में भी नहीं बैठाना चाहिए कि अरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं. यार मार्क्स अलग चीज होती है. जो इवेल्युएटर होता है उसके पास जो की होता है, मॉडल आंसर की रहता है, वो अलग तरीके से इवेल्युएट होता है. दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्मेट दैट यू टॉकिंग अबाउट. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टाइमिंग, ताकि आपका पेपर खत्म हो जाए. एंड दूसरी चीज है कि भाई कंटेंट सही रहे. दैट इज मोर देन इम्पोर्टेंट, मोर देन एनीथिंग दैट इज देयर. ये सारी चीजें
आती रहेंगी. Anyway, if there are no more questions from your side, let me continue with IR daily answer writing wala part. So yesterday we kind of covered India's neighborhood. We also talked about regional and global organizations. तो मैंने आपका DAW का जो questions हैं वो मैंने एक बार देखे हैं. तो उसमें largely again there are global organizations that have been put in, like Quad has been put in and UN has been put in. Largely WTO was also there, but ये आपका global organizations का part है. But the one thing that has been missing from the question is relations between India, US, relations between India, China, India, Russia, India, any Japan हो गया, France हो गया, या आप you're talking about India, और कौन सा कंट्री न्यूज में था? एक फ्रांस था, होराइजन 2047, जापान था. Yeah, more or less these two countries were in news for some time. Apart from that, आपका international conflicts के questions missing हैं, और डायस्पोरा ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि जो डायस्पोरा टॉपिक है वो अगर आप देखोगे वो GS2 के सिलेबस में आता है, वो PSIR के सिलेबस में नहीं आता है. सो GS2 का ये जो यूनिक टॉपिक है डायस्पोरा, ये कई बार एवरी ऑल्टरनेट ईयर दिस टॉपिक इज आस्क्ड. लास्ट ईयर इट हैज बीन आस्क्ड, इसी वजह से मे बी दे डिड नॉट आस्क इन योर डेली आंसर राइटिंग, बट आई विल स्टिल सजेस्ट कि इसको आप प्रिपेयर करोगे. ठीक है, डायस्पोरा पे ना आए पर इंडियाज सॉफ्ट पावर अप्रोच यूजिंग द डायस्पोरा आ सकता है. तो इसलिए you would have to prepare this diaspora question. But apart from these topics which have not been covered in your daily answer writing, I will advise कि इन सब छोटी छोटी चीज़ों को भी आप ध्यान पे रखो. So India US में especially in this, I will say कि critical and emerging technologies पे question आ सकता है. क्यों? क्योंकि आईसेट के कई सारे मीटिंग्स हुए हैं, उसके अलावा क्रिटिकल मिनरल्स का पार्टनरशिप हुआ है. तो ऐसी कई चीजें हुई हैं इंडिया यूएस के बीच में जहां पे क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में बातचीत हुई है. बोथ ऑफ देम हैव कम टुगेदर फॉर दैट. अभिषेक, आई विल आस्क, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट टेक अ स्नैपशॉट ऑफ योर क्वेश्चन so that I can just put it in the group. ठीक है, I'll ask. Hi, good morning, Monica. I'll ask that Abhishek ताकि वो DAW के questions आ जाए. Okay, so if I talk about this India US में यार, I will advise कि critical and emerging technology पे थोड़ा focus करो. क्या था facts, क्या नहीं है, US कितना पार्टनरशिप देना चाहता है, और क्या क्या आपके पिलर्स हैं फॉर कोलैबोरेशन अंडर आईसेट. ठीक है, सो दैट इज द रीजन व्हाई यू शुड फोकस ऑन द इंडिया यूएस क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर. द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू टॉक अबाउट इज इंडिया चाइना. नाउ इंडिया चाइना लास्ट ईयर, इफ यू सी दैट यू ऑल्सो हैवंट रिसीव्ड. ठीक है, मैं एक बार पारुल, आई जस्ट put it in the group एक बार, then I'll see what can be done about this. How come you have not received? You guys have not solved these questions, क्या? Abhishek and Parul, you have not solved these questions. ओके, कल और परसों के नहीं मिले हैं, तो दैट मीन्स DAW3 एंड इंटरनल सिक्योरिटी 1 दैट यू हैव नॉट गॉट. ठीक है, अभिषेक, इज दैट फॉर यू एज वेल? IR3 एंड हाय मधु, गुड मॉर्निंग. एक सेकेंड, मैं पूरा ना एक बार फोटो ले लेती हूँ
ताकि I'll just put it on the group. ठीक है, I'll try to ensure that these questions are there on the portal. ठीक है. I'll try कि एटलीस्ट इंटरनल सिक्योरिटी का सेकेंड हाफ में जब मैं स्टार्ट करूंगी IS1 का, वो एटलीस्ट आपको मिल जाए, बिकॉज देन इट डजंट हेल्प डिस्कशन के लेके. Do you want me to put the DAW questions online on the screen? Do you want me to do that? Then I can get my pen drive and जो मेरे पास यहाँ पे है, I can get that, put it on the screen, ताकि at least you are aware of what we are talking about. Otherwise, I'm beating around the bush for no reason. Questions डाल दूं क्या? आप सभी everybody's in agreement with it, then I'll go and get my pen drive and kind of put it out here. ठीक है, just give me a minute then. मैं 1 minute दो, मैं फटाक से I'll go and get my pen drive and put it. Okay, I've got the pen drive, so let me just put it in. Give me a minute on that, and I'll also call the person who is in charge. I just figured it out कौन है, ताकि उसको भी मैं बोल दूं कि वो पोर्टल में अपलोड कर दे. Abhishek and Parul and whoever, आज आपको सारे मिल जाएंगे. You will get every one of them. There is a backlog going on, but वो आज पूरा हो जाएगा. And I will just copy this.
Okay, so these are the questions that have been put in the DAW. ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं. तो अगर आप देखते हो, देयर इज फर्स्ट क्वेश्चन इज a diaspora ka question which is on the Israel Palestinian war and its implications on diaspora. I will still advise कि diaspora को थोड़ा सा और I'll come to that point अभी. सेकेंड क्वाड का क्वेश्चन है. तीसरा आपका यूएन पीस कीपिंग मिशन का क्वेश्चन है. यूनेस्को का क्वेश्चन है यहाँ पे. और आपका आता है WTO का डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म को लेके. नेक्स्ट जो आता है वो है इंडिया यूएई रिलेशंस, विच इज बेसिकली जो नया सेपा आया है उसके बारे में बात किया गया है. एंड देन यूएनएससी का रिफॉर्म को लेके क्वेश्चन आया है. ठीक, तो दिस इज दी 7 क्वेश्चंस दैट हैव बीन देयर इन DAW 3. तो नाउ इफ यू हैव सीन, एक बार जस्ट बेसिक अगर आपने समझ लिया तो यहाँ पे अगर आते हैं तो यू विल सी दैट व्हाट इज मिसिंग इज इंडिया यूएस कंपोनेंट कंप्लीटली. कि इंडिया यूएस में अभी तक DA1 या DA2 या DAW 2 और 3 में इंडिया यूएस वाले क्वेश्चंस नहीं आए हैं. तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि इंडिया यूएस को आप ढंग से थोड़ा सा कर लो, क्योंकि इंडिया यूएस बज में काफी बार है. 2+2 हुआ है, आईसेट पे मीटिंग्स हुई हैं, ऑल ऑफ दिस हैज हैपेंड. सो माय ओनली सबमिशन इज क्रिटिकल एंड इमर्जिंग. अगर आपके पास लगता है कि टाइम नहीं है तो जस्ट फोकस ऑन द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का जो भी पार्टनरशिप है इंडिया यूएस का, उस पर फोकस करो एंड फिगर आउट कि क्या क्या आप आंसर में लिख सकते हो एज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ दिस पार्टनरशिप. ठीक है, जैसे कि आई गिव एन एग्जांपल हियर. स्ट्रेंथ ये है कि अब आपको ग्लोबल नॉर्थ के जो हेजिमॉन है, मतलब यू नो द पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज नाउ शेयरिंग टेक्नोलॉजीज विथ यू. यू आर नाउ no longer just a strategic partner but also a technological partner for US. So you are now coming into a point where India is going to be part of the race. On the other hand, जो weakness आता है that we are still not getting the entire component for making. Right? हमें थोड़ा बहुत we are getting bits and pieces of making engines and everything, but we are not getting a full deal of critical technology. Now this is where the main problem is. उसके अलावा weakness में data concentration in US, other things that will all come into picture. Critical mineral partnership will be one more example जहाँ पे India and US have come together with that partnership. And उसके लिए India ने खुद का एक critical mineral list भी निकाला है, in which about 30 minerals have been listed. तो ये सारी चीजें आपको एज पार्ट ऑफ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का पार्टनरशिप के बारे में आना चाहिए. ठीक है, दूसरा चीज जो आना चाहिए वो है इंडिया चाइना के बारे में. अगर इंडिया चाइना के बारे में बात करते हैं, सो इंडिया चाइना डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ स्ट्रैटेजिक मीटिंग लास्ट ईयर एक्सेप्ट व्हेन इट मेट फॉर SCO और ब्रिक्स. क्वेश्चन कैन हैपन दैट इन लाइट ऑफ नो बाइलैटरल, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, इन लाइट ऑफ नो बाइलैटरल relations or bilateral meetings, multilateralism is the way ahead for India-China relations. ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि भाई बाइलैटरलिज्म पे अगर कुछ नहीं हो रहा है, इंडिया चाइना के बीच में कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या आप इसको मल्टीलैटरलिज्म के थ्रू में सॉल्व कर सकते हो. तो यहाँ पे आपका जो एग्जाम्पल आएगा वो SCO और ब्रिक्स का आएगा, क्योंकि और कोई भी मल्टीलैटरलिज्म पे इंडिया या चाइना आर नॉट रियली ऑन, देयर इज बहुत सारे प्लेयर्स आ जाते हैं तो आप वहां पे अपने कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं कर सकते हो. तो SCO में हो सकता है और ब्रिक्स में हो सकता है, एंड दैट इज वेयर यू वुड ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन. आप ये जरूर लिख सकते हो कि भाई जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो कॉप्स में इंडिया चाइना साथ में आता है, बट दैट इज एन एजेंडा रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज विच इज अ ग्लोबल फिनोमेना. बट चाहे आप ब्रिक्स या SCO बोलो, वहां पे यू आर टॉकिंग अबाउट working together, whether in terms of connectivity, de-dollarization or global trade or anything like that, जहां पे India China have the potential to resolve their issues.
तो इंडिया चाइना का जो interactions रहा है in BRICS as well and SCO is something that you have to be aware of. एंड ये भी आपको सोचना पड़ेगा क्या आप yes और no में जवाब दोगे when it comes to resolving dispute between India and China through these bodies. मेरा अगर पर्सनल आप पूछोगे तो multilateral organizations do give a scope for dialogues, but they are not dispute resolve नहीं कर सकते. They are not dispute, or they are not for dispute resolution. So dispute अगर मुझे resolve करना है, I would have to go for a bilateral talks. But it is better to have at least talks at the multilateral side meetings rather than having no talks at all. ठीक है, तो इंडिया चाइना पे ये क्वेश्चन आ सकता है. तीसरा चीज जो आ रहा है रशिया को लेके. नाउ ड्यू टू अगेन आई एम पुटिंग अ क्वेश्चन आउट हियर जहां पे आई कैन काइंड ऑफ इंडिकेट व्हाट इज हैपनिंग हियर. अगेन हाईलाइट में इंडिया रशिया का मीटिंग था, राइट. PM Modi had visited Russia and काफी हल्ला हुआ था उसको लेके. The second thing is that अभी 23 अगस्त को वो जा रहे हैं यूक्रेन. तो अगेन द हल्ला इज ऑन यूक्रेन एंड PM Modi's move on it. So the question therefore can be, ये नहीं कि भैया वॉर रोक सकता है कि नहीं. The question therefore can be that India has good relations with Ukraine and as well as Russia. In this light, should India, or do you think India should mediate between the two countries in realization of its global aspiration? ठीक है, मीडिएशन पे क्वेश्चन आ सकता है. दूसरी चीज जो आ सकता है रशिया को लेके कि भाई विजिट टू रशिया इंडिकेट्स इंडियाज प्रायोरिटी टू रशिया. इन दिस लाइट डिस्कस इंडियाज बैलेंसिंग इन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म. तो ये दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं. एक ये कि भाई आप कैसे बैलेंस कर रहे हो रशिया को और यूएस को, और दूसरी तरफ ये आ सकता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या इंडिया मीडिएट कर सकता है, ठीक है, एज पार्ट ऑफ इट्स ग्लोबल एस्पिरेशंस. अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं बोल रही हूँ मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में ये रहेगा अरे ये तो बहुत ईजी है, ठीक है, ये तो कर ही पाओगे. बट देन यहाँ पे दो चीज आ जाता है. पहला चीज आ रहा है कि इतना आसान से यस और नो मत लिखना. पहला क्वेश्चन आते हैं मीडिएशन पे. कैन इंडिया मीडिएट और शुड इंडिया मीडिएट? इंडिया ने आज तक कभी मीडिएशन की बात ही नहीं की है. इंडिया हैज सेड दैट डायलॉग एंड डिप्लोमेसी D&D के थ्रू में ही सब कुछ रिजॉल्व होने वाला है. बट इंडिया कैन प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म एंड हेल्प देम टू कम इनटू दैट डायलॉग मैकेनिज्म. उसको आप मीडिएशन बोलोगे या उसको आप एज अ फ्रेंड ऑफ ऑल ये बताओगे, ये आपके ऊपर है. बट इंडिया का जो एजेंडा है वो है विश्व मित्र का, ठीक है. इंडिया डज नॉट सी इटसेल्फ एज a party that has got any kind of alliances with either side. It's a friend of both the parties and this is not the era of war. Dialogue and diplomacy should resolve it. ये तीनों statements इंडिया के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं, राइट. आई एम रिपीटिंग. एक ये है कि इंडिया वांट्स टू बी अ विश्व मित्र, दैट इज द एजेंडा. सेकंड इज दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर. तीसरा है डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के थ्रू ही होने वाला है. ये तीनों स्टेटमेंट्स को अगर आपने आंसर में लिखा एंड सपोर्ट किया कि हाँ भाई रशिया में जाके भी इंडिया ने बात किया है and India has talked about the importance of stopping the war so that there would be more and more global trade, security and growth of all in the region, and it understands the security vulnerabilities of Russia. Similarly, India has had talks or is going to have talks with Ukraine. It would be able to pass the message of security vulnerabilities of Russia and then create that confidence building measure in order for them to come to a dialogue. Because India's official stand is that this is not an era of war. तो आप ये लिख सकते हो when it comes to India's mediation role. Hi Jayalalitha. Now, in that case, what is important is do not take a stand, outrightly a stand कि हाँ भाई इंडिया का काम है मीडिएट करना. इंडिया आज तक ये नहीं कहा है ऑफिशियली. बट अगर इंडिया करता है तो India will not try to openly host a dialogue. India will instead create confidence building measures जिसके थ्रू में दोनों पार्टी साथ में आ सकते हैं, ठीक है.
पहली बात। दूसरी बात, इंडिया के बैलेंसिंग को लेके आ सकता है, तो बैलेंसिंग को तो भाई आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करना है, क्योंकि इंडिया हैज डन अ सक्सेसफुल बैलेंसिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। चाहे आप यूएस का प्रेशर को लेके बात करो या आप रशिया का कांस्टेंट ये कि भाई हम चाइना के साथ दोस्ती कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट, वी हैव बीन एबल टू इग्नोर दैट एंड कंटिन्यू बिल्डिंग रिलेशंस विद रशिया। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट इंडिया हैज बीन near perfect, and not perfect, near perfect when it comes to balancing, and it is all in the light of what strategic autonomy. ठीक है, so India Russia के relations को थोड़ा सा आपको from the balancing perspective you should prepare at least 4-5 points so that you have a flow or a structure in mind. ठीक है, अब आते हैं इंडिया जापान या इंडिया फ्रांस। इंडिया फ्रांस अगेन कैन हैपन। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था प्रीलिम्स से पहले कि फ्रांस के साथ बहुत सारे मीटिंग्स हुए हैं और होराइजन 2047 पे फोकस किया गया है। होराइजन 2047 इज द पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस राइट नाउ, जहां पे पीपल प्लैनेट प्रॉस्पेरिटी पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली प्रॉस्पेरिटी इज व्हाट ट्रेड, पीपल इज सॉफ्ट पावर एंड प्लैनेट इज क्लाइमेट चेंज। इन तीनों फैक्टर्स पे अभी आज के दिन इंडिया और फ्रांस के बीच में पार्टनरशिप दिखेगा। Now, why is France important also? India should have more and more ties with other countries. It is not only in sync with India's foreign policy, but also important that India has, friends to support it in case of any kind of dispute emerging in its neighborhood. चाहे आप इंडिया चाइना की बात कर रहे हो या आप इंडियन ओशन की बात कर रहे हो, you still need allies. You cannot depend on only one, right? तो फ्रांस का आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा चीज आ जाएगा जापान के साथ ना। जापान के साथ जो क्वेश्चन आ सकता है, 2 क्वेश्चन आ सकता है, ट्रेंड रहेगा इसका। एक ये ट्रेंड रहेगा कि इंडिया जापान रिलेशंस आर डिक्लाइनिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि शिंजो एब के समय पे जो आप इंडिया जापान रिलेशंस देख रहे थे वो आज के दिन मिसिंग है। चाहे आप स्ट्रैटेजिक टाइज की बात करो, मीटिंग्स की बात करो या इवन द डेवलपमेंटल असिस्टेंस की बात करो, देयर हैज बीन अ डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ ऑल ऑफ दिस। बल्कि इंडिया जापान के बीच में आज के दिन अगर हम बात करते हैं, इट इज लार्जली बेस्ड ऑन द डेवलपमेंटल असिस्टेंस। वो दिन गए जब हम सॉफ्ट पावर और एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर और ये सब हो रहा था। क्यों? क्योंकि उस समय पे जापान इंडिया को एज अ पार्टनर देख रहा था रीजन में। आज के दिन जापान यूएस को अपना पार्टनर देख रहा है, ऑस्ट्रेलिया को अपना पार्टनर देख रहा है, साउथ कोरिया को अपना पार्टनर देख रहा है। And there are 2 reasons for that again. Why is that happening? The transition has happened. सबसे पहला ट्रांजिशन इसलिए हुआ है कि जापान is becoming और preparing for war. जापान आज के दिन काफी अग्रेसिव होने लगा है, जो पहले नहीं था। Japan was a country which wanted only free and open Indo-Pacific through economic means. ठीक है, जैसे इंडिया चाहता है। बट आज के दिन अगर आप देखोगे तो जापान एक अग्रेसिव स्टांस ले रहा है, कह रहा है नहीं भाई हमें वी हैव टू बी मिलिटरीली रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और एनी काइंड ऑफ confrontation with China. तो इसी वजह से चाहे आप अग्रीमेंट्स देखो विथ यूएस या चाहे आप अग्रीमेंट्स बिटवीन जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ऑल ऑफ दिस इज रिजल्टिंग इन जापान लुकिंग एट डिफरेंट पार्टनर्स बट नॉट इंडिया. तो देयर इज अ डाउनवर्ड स्लाइड. हाउ कैन यू इम्प्रूव इट? India is very clear that we are not going to militarily engage with China in the South China Sea unless required. In that light, India is okay to be a partner with Japan on developmental assistance and other sectors of cooperation. सिर्फ मिलिट्री नहीं है कि एक ही मतलब it's just not military जहाँ पे cooperate कर सकते हो आप. दूसरे भी sectors of cooperation हैं जहाँ पे आप aggressively you can come together. So India and Japan really need to find that common ground based on soft power. Either it is economic or civilizational or cultural or tourism or whatever, but that has to be done so that the India-Japan partnership is strong enough in the region. अगर ये partnership strong नहीं रहने वाला है तो you are kind of missing out on the elephant in the region, which is India. ठीक है, तो जापान का एक ये पर्सपेक्टिव आपको ध्यान रखना पड़ेगा.
The second type of question that can come from the perspective of India-Japan, relations is regarding China itself. ठीक है, is regarding China. Directly China को लेके पूछा जा सकता है कि भाई दोनों neighboring countries हैं China के लिए, तो there is synergy between both of them. That is between India and Japan. ये natural synergy को किस तरीके से आप exploit करो या उसको achievement की तरफ बदलो, उस पे भी एक question आ सकता है, right? So both Japan and India have common synergies when it comes to China, when it comes to other aspects of South China Sea and other things, which therefore makes Japan and India natural allies. How can India and Japan build a better relation? ये भी question आ सकता है, ठीक है? Again, the same point will come in कि भाई ये चाइना का एक्सपेंशनिज्म आ रहा है, यहाँ पे इंडिया और जापान के खुद के जो डेंजर्स हैं वो काफी सिमिलर है. साउथ चाइना सी में क्या प्रॉब्लम है, दैट इज द सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन वाला पॉइंट, एंड देन यू कैन कंटिन्यू आर्गिंग द सेम थिंग. ठीक है, सो जापान आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करना है. यू वुड हैव टू प्रिपेयर ऑन फ्रांस एज वेल. अब आते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स पे. यार इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को अगर देखा जाए तो दो कॉन्फ्लिक्ट्स हमें पता है, बट प्रीलिम्स का पेपर देख के ऐसा लगा कि दे आर ऑल्सो आस्किंग अबाउट द मिलिट्री कूज. ठीक है, मिलिट्री कूज पे भी फोकस किया गया है इन अफ्रीका. तो मेरा जो आर्ग्यूमेंट रहेगा दैट मीन्स कि मैं इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करूंगी. एक में रशिया यूक्रेन, तो ऑफ कोर्स आई विल कीप दैट इन माइंड. दूसरा आएगा आपका इजराइल पैलेस्टाइन. ठीक है, तीसरा मैं मिलिट्री कूज की बात कर सकती हूं, मिलिट्री कूज. एंड चौथा मैं बात करूंगी प्रोटेस्ट्स को लेके. ठीक है, तो ये 4 मैं एज कंपोनेंट्स देखने वाली हूं व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स. रशिया यूक्रेन की बात करें तो यहाँ पे कोई आपसे नहीं पूछने वाला है कि क्या चल रहा है. Instead, there would be a question either about NATO, or it could be a question about how the war is affecting global trade, how the war is creating, some big question about confidence building measures or something like that. कोई भी पिन पॉइंटेड क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है रशिया यूक्रेन वॉर से, कि इतने साल से चल रहा है एंड देयर इज नो एंड टू इट. ये काफी इजीली दिख रहा है. नेक्स्ट आते हैं इजराइल पैलेस्टाइन वॉर पे. इजराइल पैलेस्टाइन वॉर पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, राइट? What do you think are the causes of Israel-Palestine? या should there be a Palestinian state? ऐसा कुछ question आ सकता है. High probability of a Palestinian state वाला question rather than on a war वाला question. ठीक है, but ये आने के chances हैं. Especially from the point of view of proxy wars और Hamas, Hezbollah, Houthis का जो impact है on the Red Sea, ये सारी चीजें पूछा जा सकता है from the perspective of Israel-Palestine. So again repeating, यहाँ पे पैलेस्टीनियन स्टेटहुड पे थोड़ा सा फोकस करोगे. उसके अलावा आपको फोकस करना है प्रॉक्सी वॉर के बारे में. तीसरा आपको मैरीटाइम पायरेसी, दैट इज पायरेसी पे फोकस करना है कि क्या इम्पैक्ट रहा है पायरेसी का ऑन द रेड सी एंड ऑन द ग्लोबल ट्रेड. तो ये कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इजराइल पैलेस्टाइन. नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि ये वॉर सही था कि नहीं था, शुड देयर बी रेजोल्यूशन टू इट, और क्या है सीज फायर, कोई नहीं पूछने वाला ये सारी चीजें. ठीक है, ये 3 जो मैंने एस्पेक्ट्स बोली हैं, इन तीनों एस्पेक्ट्स पे थोड़ा ध्यान से अगेन गेट योर पॉइंट्स रेडी फॉर इट. नेक्स्ट जो मिलिट्री कूज की बात हो रही है, मिलिट्री कूज अगर आप देखोगे अफ्रीका में लास्ट ईयर बज में था, but it was asked in prelims, and it was asked in prelims in the form of, you of course you all know that. तो prelims में भी जो आया military coups को लेके, no, but again मेरा यहाँ पे ये मानना होगा कि क्या the kind of question that can come from the military coups is that Africa is in flux, Africa is in chaos, and because of which a strong voice of Africa is not emerging. ऐसा कोई question आ सकता है.
ठीक है, जहां पे आपको दोनों प्रोटेस्ट और मिलिट्री कूज को दोनों को एड्रेस करना पड़ेगा। प्रोटेस्ट की अगर हम बात करें तो अक्रॉस द वर्ल्ड चल रहा है, चाहे आप अर्जेंटीना में बात करो, चाहे आप केनिया में बात करो, चाहे आप बोलीविया में बात करो, बांग्लादेश की बात करो, तो हर जगह पे प्रोटेस्ट चल रहा है, यूके में बात करो। सो देयर इज राइट नाउ अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इट कुड बी सेड दैट 2024 is the year of protests where civilians are asking for good governance। तो ये जो है आपको आना चाहिए कि कहाँ पे क्या प्रोटेस्ट चल रहा है एंड फॉर व्हाट कॉज इट इज गोइंग ऑन। एग्जाम्पल्स में काम आएगा बट आर्ग्यूमेंट्स में आपको ये करना पड़ेगा कि भाई व्हेन पीपल what is the you have to come up with arguments supporting the idea of protests and how civilians or citizens are taking power in their own hands to ask for a change, right? तो ये कुछ चीजें आपको फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स आना चाहिए। नेक्स्ट आता है डायस्पोरा। तो डायस्पोरा पे इम्पैक्ट, ठीक है, इजराइल पैलेस्टीन वॉर का इम्पैक्ट आ सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक जनरल क्वेश्चन जरूर आता है, लास्ट टाइम भी आया था, व्हिच वाज अबाउट द डिफरेंस ऑफ डायस्पोरा इन द गल्फ वर्सेस इन द यूएस। ठीक है, तो जो आपका ब्लू कॉलर्ड लेबरर्स हैं और व्हाइट कॉलर्ड लेबरर्स हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। किसी एक ग्रुप को सपोर्ट नहीं करोगे, किसी एक ग्रुप को क्रिटिसाइज नहीं करोगे। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बोथ आर एन एसेट। एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करता है, पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है, दूसरा हमें रेमिटेंसेस भेजता है। तो दोनों तरफ से दोनों ही एसेट है इंडियन गवर्नमेंट को। सो ये कुछ चीजें हैं जो आपको अपार्ट फ्रॉम DAW यू शुड कीप इन माइंड कि ये टॉपिक्स आ सकता है। क्लियर है ये? इज दैट क्लियर? आप में से किसी को क्वेश्चन पूछना, एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव? What's happening, guys? Are you all writing? Are you listening? Or are you zoned off? ये तीन चीजें हो सकती हैं। Either you are zoned off, absolutely कि समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, या आप लोग लिख रहे हो, या आप लोग you are just in a dreamland. Now you need to tell me what is happening. If you have any questions, ask. Varna we'll go and start discussing the DAWs. If you have any points to raise कि मैम ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आई एम मोर देन हैप्पी टू थिंक अबाउट दैट टॉपिक एज वेल। कोई आपके दिमाग में कोई टॉपिक है फ्रॉम द IR पर्सपेक्टिव दैट आई माइट हैव मिस्ड आउट? Okay, now that none of you have anything to add to it, so let's start with the daily answer writing. Okay, so pehla question. The ongoing Israel UPI as a method, इतना direct question नहीं आएगा कनिष्क। इंडिया सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी पे अगर ब्रॉड 10 मार्कर आ सकता है तो आएगा। UPI एज अ मेथड तो इतना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ओके, आते हैं पहले DAW में, दैट इज द ऑनगोइंग इजराइल पैलेस्टीनियन वॉर इन इंडियाज एक्सटेंडेड नेबरहुड हैज implications for India and its diaspora. How can India maintain a balancing act? How can India maintain a balancing act for its continued Middle Eastern ties? अरे यार, Middle Eastern आएगा ही नहीं, West Asian आएगा। How can India maintain a balancing act for its continued West Asian ties? Okay, तो ये बेसिकली आपको पूछ रहा है इंडिया GCC और इंडिया इजराइल। यहाँ पे इंडिया ईरान का कंपोनेंट भी लाना पड़ेगा, बट इसमें
इंडियन डायस्पोरा बहुत कम है, सो इंडियन डायस्पोरा इज वेरी लेस। यहाँ पे डायस्पोरा ज्यादा है, यहाँ पे स्ट्रैटेजिक रिलेशंस ज्यादा है। तो मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये है, द क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड इज दैट इजराइल पैलेस्टीनियन वॉर के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं, उसका इम्पैक्ट इंडियन डायस्पोरा में हुआ है। और अगर हम इस इंडियन डायस्पोरा वाला एंगल देखते हैं, तो हाउ कैन इंडिया काइंड ऑफ बैलेंस इट्स रिलेशंस। तो लार्जली बैलेंसिंग जो बोला गया है वो जीसीसी और इजराइल के बीच में बोला गया है, बट ईरान का एक दो स्टेटमेंट लाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया ईरान और इजराइल को भी बैलेंस कर रहा है, ठीक है। सो नाउ इफ आई हैव टू राइट दिस क्वेश्चन, मेरा पहला जो इंट्रोडक्शन रहेगा, इंट्रो रहेगा, वो है आपका 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर से जो वॉर शुरू हुआ है, इसमें दो तीन लाइन में लिखने वाली हूँ कि 7 अक्टूबर से। सो आई विल स्टार्ट विथ द रीसेंट इजराइल पैलेस्टीन, रीसेंट लिखना है क्योंकि इससे पहले बहुत बार वॉर हो चुका है। द रीसेंट इजराइल पैलेस्टीनियन वॉर conflict, not war, conflict that has started from 7th October 2023 was due to an attack by Hamas, Palestinian outfit, militant टेररिस्ट, ये वर्ड्स मत यूज करना, आप पैलेस्टीनियन आउटफिट यूज कर लेना, ताकि यू नेवर नो हु इज चेकिंग द पेपर, राइट। यू नेवर नो कि उसके क्या ओपिनियन है इस वॉर के बारे में। तो आपके जो ओपिनियन है उसको थोड़ा सा एक्सप्रेस मत करना। इट डजंट मैटर इफ यू सपोर्टिंग इजराइल, यू सपोर्टिंग पैलेस्टाइन। जब आंसर लिख रहे हो तो न्यूट्रल मन के लिखना, मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है। सो कॉलिंग हमास अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, उस पर थोड़ा रोक लगा देना, ठीक है। या इफ यू वांट टू इवन काइंड ऑफ से अ फ्रीडम फाइटर, ये आई गेट द पॉइंट, बट दैट इज योर ओपिनियन, इट हैज नो प्लेस इन द आंसर राइटिंग। यू कैन डू सो इन योर पर्सनल थिंग, नॉट फॉर द एग्जाम्स। कमिंग बैक, तो यहाँ पे मेरा रहेगा कि भाई हमास अ पैलेस्टीनियन आउटफिट had attacked Israel, and in retaliation Israel bombarded Gaza, in which case the war has continued till today, and there are millions of Palestinians who have become refugees or are in danger of their own life and property. तो मैंने दोनों साइड्स को एकदम प्रॉपरली इंट्रोडक्शन में ही बता दिया है कि अक्टूबर से चल रहा है। इजराइल हमास ने स्टार्ट जरूर किया था, पर इजराइल ने भी कोई कम चीज नहीं किया, पूरा गाजा को बम्बार्ड कर दिया। ये मेरा इंट्रोडक्शन रहेगा। मेरा जो लास्ट लाइन रहेगा इंट्रोडक्शन में, मैं वो लिखूंगी कि यार दिस वॉर हैज हैड नॉट ओनली अ ग्लोबल इम्पैक्ट बट ऑल्सो अ रीजनल इम्पैक्ट which has affected India's interest in the region. India's interest in the region. ये मेरा इंट्रोडक्शन रहेगा। तो मैंने वॉर को 2 लाइन में समझाया, और मैंने ये भी कहा कि ग्लोबल और रीजनल इम्पैक्ट है, जिसके बेसिस पे इंडिया को भी इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है, इंडिया के इंटरेस्ट को भी हुआ है। अब नेक्स्ट मेरा आएगा कि भाई क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि भाई इसका इम्प्लीकेशंस इंडिया एंड डायस्पोरा में हुआ है। तो मेरा सेकंड जो पैरा रहेगा वो ये रहने वाला है कि क्या इम्प्लीकेशंस हुए हैं। सो मेरा जो सेकंड पैरा रहेगा वो मैं इम्प्लीकेशंस को बोलने वाली हूं, ठीक है। Second para is going to work on the implications of the war on India as well as on the diaspora. Okay, the first क्या होगा? First is यार safety. War के वजह से there is a matter of safety of Indian diaspora. So पहले तो हम ऑपरेशन अजय के बारे में बात करेंगे, जहां पे इंडियंस को इवैक्यूएट किया गया, इंडियन डायस्पोरा को इवैक्यूएट किया गया इजराइल से। दूसरा हम बात करेंगे कि भाई there have been occasions that Indian diaspora that have been working as agricultural helpers have been killed because of the bombs. ये न्यूज में बहुत बार आया है। तो ये एक सिक्योरिटी डायलेमा हो ही जाता है कि किस तरीके से हम अपने डायस्पोरा को प्रोटेक्ट करें, हाउ वी प्रोटेक्टेड। सेकेंड इम्पैक्ट क्या रहेगा?
हमारा इकोनॉमिक रहने वाला है। क्यों इकोनॉमिक रहने वाला है? आपका सप्लाई चेन इम्पैक्ट करा है। सो रेड सी में हाउथीज के अटैक्स या रेड सी में ग्लोबल ट्रेड का एक पॉज होना, इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट एवरी कंट्री इन द एशियन रीजन, स्पेशली इंडिया जो इतना डिपेंडेंट है इस रीजन पे फॉर इट्स पेट्रोल एंड अदर फॉर इट्स क्रूड ऑयल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। तो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन आया ही है। तीसरा आया है आपका कि इट हैज़ इम्पैक्टेड प्रोजेक्ट सच एज आईमेक। तो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो इतना इम्पोर्टेंट था हमारे लिए, इट वुड हैव लेड टू बेटर ट्रेड एंड ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी, वो पॉज में आ गया है। वो एक लिमिटेशन की तरफ प्रूव कर रहा है। वो अब कब स्टार्ट होगा हमें नहीं पता। So that is the third implication if we talk about it, that projects such as IMEC has been put on hold. अब जो चौथा चीज आता है कि हमारा जो पॉलिसी है इजराइल पैलेस्टाइन का, कौन सा पॉलिसी है? डी-हाइफनेशन पॉलिसी है। डी-हाइफनेशन पॉलिसी है। डी-हाइफनेशन पॉलिसी क्या होता है? डी-हाइफनेशन इज इंडिया इजराइल अलग रिलेशन रहेगा और इंडिया पैलेस्टाइन अलग रिलेशन रहेगा। इट इज नो लॉन्गर इंडिया इजराइल पैलेस्टाइन रिलेशन। तो वो हाइफन हटा दिया गया है, अब इंडिया इजराइल और इंडिया पैलेस्टाइन रिलेशन रहेगा। द नेक्स्ट चैलेंज इज दैट इस पॉलिसी, दैट्स अ डी-हाइफनेशन पॉलिसी पे एक बड़ा चैलेंज आ चुका है फ्रॉम द इजराइल पैलेस्टीनियन वॉर, क्योंकि आज के दिन हम ये डी-हाइफनेशन पॉलिसी को प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं। कैसे करोगे? यू कैन नॉट से दैट हाँ इजराइल ने सही किया, यू कैन नॉट से हाँ यार पैलेस्टीनियन स्टेट मिलना चाहिए। दे आर बोथ on the opposite sides. You cannot support both the causes, right? You cannot support both the causes. So it's becoming a challenge for the de-hyphenation policy of India. तो ये implication है इंडिया और इंडियन डायस्पोरा के ऊपर। अब ये मेरा सेकेंड पैरा है। थर्ड पैरा क्या बोल रहा है? थर्ड पैरा मेरे को पूछ रहा है हाउ कैन इंडिया मेंटेन अ बैलेंसिंग एक्ट। अब मुझसे क्या पूछा जा रहा है? बैलेंसिंग एक्ट को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, किया जा सकता है। तो यहाँ पे मेरा जो थर्ड पैरा रहेगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले तो इंडियाज न्यूट्रलिटी में फोकस करने वाली हूँ कि भैया इंडिया ने दोनों पक्ष को सपोर्ट किया है, बोला है कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के थ्रू ही सॉल्व होगा, D&D, ठीक है, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के थ्रू सॉल्व होगा और कोई अदर मेथड नहीं है। सो दिस इज हाउ इंडिया हैज मेंटेन्ड इट्स न्यूट्रलिटी। डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के थ्रू सॉल्व करो, वरना इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले ही इंडिया ने दोनों पक्षों को यही कहा है। दूसरा जो चीज कहा है कि इंडिया ने UAE दैट इज अ मेंबर ऑफ द GCC कंट्री के साथ अपने रिलेशंस इंप्रूव किए हैं। चाहे आप मल्टीपल विजिट्स की बात करो, चाहे आप अग्रीमेंट्स पे फोकस करो, बट इंडिया हैज मेंटेन्ड दैट इट्स बायलैटरल टाइज विथ कंट्रीज ऑफ द GCC as well as Israel will continue to thrive. ठीक है, तो हम लोग what we have basically done is de-hyphenation पे of course आज के दिन थोड़ा प्रॉब्लम जरूर हो रहा है, बट bilateral ties को हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं from the perspective of GCC countries as well as with Israel also. तो इसराइल के साथ हम कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं? We are constantly telling Israel कि अगर आपको लेबर्स चाहिए तो इंडियन पीपल कैन गो एंड kind of work there, उनको परमिट मिल रहा है। उसके अलावा वी आर कॉन्स्टेंटली सेइंग दैट कि इजराइल शुड kind of have that. So how has government of India taken a stand? ये समझना जरूरी है। दो स्टेटमेंट्स आई थी। एक स्टेटमेंट ये था कि ये जो हमास का अटैक था इसको एज अ टेररिस्ट अटैक देखा गया है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा जो स्टेटमेंट था उसमें पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को सपोर्ट किया इंडिया ने। तो दोनों स्टेटमेंट्स डी-हाइफनेशन पॉलिसी ही है कि भाई एक तरफ आप इजराइल को बोल रहे हो कि हाँ भाई पूरी तरीके से आपके साथ समर्थ हैं, हम वी आर सपोर्टिंग यू सो दैट यू स्टॉप दिस टेररिस्ट एक्टिविटी। ऑन द अदर हैंड यू आर सेइंग कि यार ये पैलेस्टीनियन स्टेटहुड भी इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट जस्ट कंटिन्यू बॉम्बार्डिंग पैलेस्टाइन लाइक दैट। सो आज के दिन इजराइल की अगर हम इजराइल की बात करें तो इंडिया ने अभी तक कोई भी एंटी इजराइल स्टैंड नहीं लिया है, ठीक है। यूएन में या इतने सारे जो कंट्रीज ले रहे हैं, इंडिया हैज नॉट टेकन दैट स्टैंड।
So we have continued to, maintain our relations with Israel, and we believe that dialogue and diplomacy is the way ahead. तो वहाँ पे हम balancing कर रहे हैं. So again, what are we focusing on? We are focusing on a neutrality with a focus on dialogue and diplomacy. And the second thing we are talking about is bilateral engagement in GCC. And जो तीसरा चीज है यहाँ पे important है, मैंने बोला ना ईरान के बारे में एक पॉइंट जरूर लिखना है यहाँ पे. तो we have to talk about Iran as well, जहाँ पे strategic ties with Iran, चाबहार पोर्ट का mention आपको करना जरूरी है कि भाई India has continued to balance relations even with Iran by focusing on strategic ties that includes the maintenance and operation of the चाबहार port. ठीक है, तो ईरान वाला एंगल भी आपको एक पॉइंट डालना पड़ेगा जब हम बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं. एंड फाइनली आपका जो कंक्लूजन आएगा वहां पे आपको इंडिया के बैलेंसिंग के बारे में बताना पड़ेगा. इन जनरल दैट इंडिया हैज ऑलवेज बीन keen on balancing, whether it is balancing of great powers or even powers involved in a conflict. In case of Israel-Palestine, India has issued 2 statements which works in towards balancing Palestinian demand of a statehood as well as Israel's demand of security against terrorist attacks. ये लिख के आपको end करना है. That is how you can conclude this answer. ठीक है? That is how you can conclude this answer. Coming back to second question now. Second question पे आते हैं. क्या है? The Quad is here to stay. The Quad is here to grow. The Quad is here to contribute. In this light, mention how Quad has contributed towards a shared vision of a. रुको. I'm going to sneeze. In this light, mention how Quad has contributed towards a shared vision of a secure and prosperous Indo-Pacific in recent years. ठीक है? तो if I have to start here, मेरा इस पे पहला जो इंट्रो रहेगा, ये पहला नहीं है, इंट्रो रहेगा, वो क्वाड को डिफाइन करेगा. व्हाट इज क्वाड? तो when was it formed? 2016. You can talk about how was the idea given. Shinzo Abe का idea आप ले आ सकते हो. Members कौन-कौन हैं? You can talk about what is their agenda. कुछ 4-5 लाइन आप यहाँ पे क्वाड के बारे में आप दे सकते हो. ठीक है? So that is your quad का जो इंट्रोडक्शन रहेगा. सेकेंड जो पैरा रहेगा आपका यहाँ पे, सेकेंड पैरा विल बी अबाउट व्हाई इज क्वाड इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस आपको बोलना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है, द क्वाड इज हियर टू स्टे, द क्वाड इज हियर टू ग्रो, विच बेसिकली मीन्स दैट क्वाड हैज एन इंपॉर्टेंस. तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि क्यों क्वाड इंपॉर्टेंट है. तो क्वाड का अगर आप इंपॉर्टेंस देखते हो, सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका रूल बेस्ड ऑर्डर का. ठीक है, रूल बेस्ड ऑर्डर का. What is rule based order out here? That is following of international laws in form of UNCLOS, जहां पे फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो सबसे पहला ही है आपका रूल बेस्ड ऑर्डर का. उसके बाद ऑफ कोर्स चाइनाज अग्रेशन और एक्सपेंशनिज्म को चैलेंज करने के लिए इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट देयर इज अ ग्रुपिंग. ठीक है, तो चाइनाज अग्रेशन या एक्सपेंशनिज्म इज ऑल्सो अ वर्ड दैट यू कैन ऐड, जहां पे यू कैन से दैट दिस इज हाउ क्वाड इज बेसिकली वर्किंग टुगेदर टू स्टॉप चाइनाज एक्सपेंशनिज्म. तीसरा क्या आता है? तीसरा आता है आपका सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस. दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ free and open sea lanes of communication for everyone in the region. ये सिर्फ इनके कंट्रीज के लिए नहीं है, हर कंट्री के लिए है. चाहे वो आसियान है, चाहे वो जापान है, साउथ कोरिया है, जो भी है,
सभी के लिए इंपॉर्टेंट है फ्री एंड ओपन SLOCs, एंड दैट इज व्हाट क्वाड इज आल्सो फाइटिंग फॉर. क्वाड इज आल्सो कॉन्स्टेंटली सेइंग कि भाई वी नीड टू हैव फ्री एंड ओपन SLOCs. चाहे हम इंडिया के सागर पॉलिसी को बात करें या आप you're talking about the free and open Indo-Pacific, कोई भी आप strategy पिकअप करो, it is always about the free and open SLOCs. We do not want anybody to come and say कि ये territorial water है. So this is where the agenda also comes together. ठीक है. सो दिस इज दी अनदर पॉइंट जहां पे आप क्वाड का सिग्निफिकेंस ला सकते हो. जो लास्ट पॉइंट रहेगा यहाँ पे, जो मेरा डी पॉइंट रहेगा, दिस बेसिकली क्वाड का जो मेजर सिग्निफिकेंस आता है कि यू आर गेटिंग लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज टुगेदर, पावरफुल कंट्रीज कमिंग टुगेदर जो लिबरल डेमोक्रेटिक है. उसमें से देर आर ऑफ कोर्स रीजनल पावर्स इंक्लूडिंग इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, as well as you're also having the US, the global hegemon, coming as part of the alliance of Quad. That's also a dialogue based organization or a minilateral जिसके बारे में आप लिख सकते हो. तो लिबरल डेमोक्रेसी का एक एलिमेंट आपको डालना पड़ेगा. ओके, सिग्निफिकेंस के बाद व्हेन यू हैव रिटन द सिग्निफिकेंस ऑफ इट, अब क्वेश्चन आता है कि क्या क्वाड ने किया है. नाउ इट्स वेयर यू हैव टू कम डाउन टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या बोलता है? हाउ हैज Quad contributed towards a shared vision of a secure and prosperous Indo-Pacific. अब यहाँ पे आएगा कि भाई Indo-Pacific के लिए क्या किया है. ठीक है, Indo-Pacific के लिए क्या किया है. तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहला बात करूं तो Quad has, so what do you think Quad has done? What do you think Quad has done? मालाबार एक्सरसाइज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज. ठीक है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज Malabar. Now Malabar exercise does what? It helps in securing the SLOCs. It is confidence building measures between the partners. तीसरा चीज जो ये करता है, it increases interoperability between the member countries. ठीक है, और slowed down China's aggression. How? Slowed down China's aggression. How? चाइना का कौन सा अग्रेशन रोका है? चाइना तो अभी भी ताइवान के साथ हो रहा है. चाइना इज स्टिल फिलीपींस के साथ चले ही जा रहा है. हाउ हैज इट स्टॉप्ड चाइनाज aggression? Joint Sumesh, joint semiconductor production through India. इसी चीज को थोड़ा सा बेटर बनाते हैं. ठीक है, इसको ना एक सब पॉइंट के अंडर रखेंगे. सोमेश, व्हाट यू कैन टॉक अबाउट हियर इज टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल पार्टनरशिप. टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप, क्योंकि क्वाड में आपका केबल कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है एक. उसके अलावा यू कैन टॉक अबाउट द सेमीकंडक्टर्स. ठीक है, तो केबल कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है, सेमीकंडक्टर्स का आप बात कर सकते हो. उसके अलावा यू कैन टॉक अबाउट और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है. नहीं, these two टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैज हैपेंड. केबल कनेक्टिविटी था, सेमीकंडक्टर्स, ये दो आप मेंशन कर सकते हो. उसके अलावा Quad has also come into issues such as
पायरेसी, जब वो रेड सी वाला इशू हो रहा था, दे हैड कम अप विद अ स्टेटमेंट। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज पे बात किया है इन लोगों ने। उसके अलावा डीप सी इकोनॉमी या ब्लू इकोनॉमी जिसे कहते हैं, डीप सी माइनिंग के अगेंस्ट बोला है, एज वेल एज ब्लू इकोनॉमी को सपोर्ट करने का एक स्टेटमेंट भी जारी किया है। ठीक है, सो कुछ चीजें हैं जो ये लोग साथ में करते हैं। चाइना को स्लो डाउन करने का एजेंडा तो आज के दिन गया है। चाइना आज तक स्लो डाउन नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ क्वाड। तो यू कैन नॉट गिव एक्चुअली एनी एग्जांपल्स कि भाई जहां पे इन लोगों ने ऐसा कुछ भी किया है जिसके वजह से चाइनीज अग्रेशन स्लो डाउन हुआ है। बट दे हैव डेफिनेटली कम ऑन अदर एस्पेक्ट्स सच एज ब्लू इकोनॉमी पे काम करना, अनरेगुलेटेड फिशिंग को रोकना, डीप सी माइनिंग को रोकना, इलीगल डीप सी माइनिंग को रोकना एक प्रॉपर तरीके से करना, क्लाइमेट चेंज दैट इज अगेन इम्पैक्टिंग द मेरिटाइम सी लाइफ, उसके ऊपर बात करना, हाई सीज ट्रीटी को सपोर्ट करना, पायरेसी के अगेंस्ट करना। तो ये ऐसी कुछ चीजें हैं जहां पे क्वाड हैज कम इन टू सपोर्ट फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। तो ये सारी चीजें आपको बात करनी पड़ेंगी। चाइनीज अग्रेशन डायरेक्टली मत लिखना, ठीक है, चाइनीज अग्रेशन मत लिखना। सो दिस इज हाउ एक्ट एज एन ऑल्टरनेटिव टू चाइनाज डेट ट्रैप पॉलिसी। कहां पे दिया है अभी तक? फेयर फंडिंग अभी तक कहां शुरू किया है यार? दे आर टॉकिंग अबाउट इट, अग्रीड है सोमेश, दे आर टॉकिंग अबाउट इट, बट अभी तक शुरू नहीं हुआ है। If they can do it, for example, they are talking about giving it to certain island countries, तो why not? ठीक है, तो that could be a possibility that they can look into. तो ये कुछ चीजें एज अ क्वाड का सिग्निफिकेंस आप लिख सकते हो। फाइनली कमिंग इनटू द पिक्चर दैट यू नो क्वाड वाज नेवर मेंट, ये कंक्लूजन में लिखना है, क्वाड वाज नेवर मेंट टू बी एंटी चाइना। क्वाड वाज a dialogue between like-minded countries to have free and open Indo-Pacific as well as prosperity for all in the region. That means आप इकोनॉमिक वाली बात पे भी आ रहे हो कि भाई सबका ट्रेड फ्लो ओपन रहे, सबका ट्रेड इंप्रूव करे, इन सब चीजों पे अपने फोकस किया है rather than just चाइना। तो क्वाड का जो मेन एजेंडा है, इट इज नेवर बीन अबाउट बीइंग एंटी चाइना ओनली, इट हैज अ लार्जर agenda of protecting the maritime prowess of the Indo-Pacific region. ठीक है, तो इससे मैं इसको कंक्लूड कर दूंगी आंसर को। लेट्स कम डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, यूएन पीस कीपिंग मिशन इज डेडिकेटेड टू असिस्ट मेंबर स्टेट्स इन देयर एफर्ट्स टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, डिस्कस इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन इन सपोर्टिंग द मिशन। तो दो चीज है यहाँ पे, एक ये कि यार यूएन पीस कीपिंग का जो टॉपिक आता है वो पीएसआईआर में आता है, ठीक है, इट इज इन पेपर 2, इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर जीएस सिलेबस, बट बिकॉज इट इज स्टिल यूएन पूछा जा सकता है, क्योंकि जीएस में ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है जो इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है, बट टेक्निकली ये जो टॉपिक है वो पीएसआईआर का पार्ट है। तो व्हेन आई यूज्ड टू टीच पीएसआईआर तब मैं ये यूएन पीस कीपिंग पढ़ाती थी, बट जीएस में एज सच इसको कवर किया नहीं जाता है। अगर आ गया तो आ गया, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो अगर ये इंडियाज कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछा जा रहा है तो इसके जो आंसर्स हैं बहुत ही मतलब रूटीन आंसर है, इसका कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो न्यू थिंग दैट हैज हैपेंड ऑन दिस। तो अगर हम बात करते हैं इसका आंसर स्ट्रक्चर, ये 3 पैरा में आप निपटा सकते हो, ठीक है। पहला जो पैरा होगा वो यूएन पीस कीपिंग मिशन के इंपॉर्टेंस के बारे में होगा कि क्यों यूएन पीस कीपिंग इंपॉर्टेंट है। इसको आप अगर इंट्रोडक्शन में नहीं लिखना चाहते हो, यू कैन जस्ट इंट्रोड्यूस कि भाई यूएन के अंदर पीस कीपिंग मिशन है जहां पे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स को once the conflict has ended, peacekeeping forces ensure that the conflict zone remains peaceful till the time there is a transition that happens. ये आप लिख सकते हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि पीस कीपिंग फोर्स कभी अग्रेसिव नहीं होती है, मतलब वो नहीं जाती है लड़ाई बंद करने, वो जाती है पीस को मेंटेन करने। ये चीज या ये डिफरेंस समझना जरूरी है, ठीक है।
तो पीस कीपिंग फोर्सेस जो होती हैं वो कभी लड़ाई बंद करने नहीं चाहती है. देयर इज नो वे दे गो एंड स्टॉप द वॉर. They only go when the war has ended, there is a ceasefire, and they go there to maintain that ceasefire or peace. इसीलिए इसको पीस कीपिंग बोला जाता है. ठीक है. एंड सेकेंड चीज जो है वो यूएन पीस कीपिंग में दो टाइप ऑफ कंट्रीज हैं. एक है ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्री, एक है फाइनेंस कंट्रीब्यूटिंग कंट्री. ठीक है. दैट मीन्स यूएन के मेंबरशिप्स में जो कंट्रीज ट्रूप्स देती हैं वो लार्जली ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं, और जो कंट्रीज पैसा देती हैं वो ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज है. ये एक डिफरेंस है, क्योंकि nobody wants to send their own soldiers for UN peacekeeping mission जहां पे डेंजर में कुछ भी हो सकता है. rather they are okay with giving money. और ग्लोबल साउथ कंट्रीज पैसा दे नहीं पाती हैं तो वो ट्रूप्स कंट्रीब्यूट करती हैं. तो ये बेसिक चीज है यूएन पीस कीपिंग मिशन के बारे में. तो जो पहला पैरा होगा आप थोड़ा सा यू कैन राइट अबाउट यूएन पीस कीपिंग मिशन, जहां पे यू कैन टॉक अबाउट दैट यूएन पीस कीपिंग मिशन में यू नो इट इज बेसिकली देयर to maintain peace. It is part of the UN to help the countries in their transition towards a peace situation. ठीक है. अब यहाँ पे जो आपका सेकेंड पैरा है उसमें आपको सिग्निफिकेंस ऑफ द यूएन पीस कीपिंग मिशन के बारे में डालना पड़ेगा. तो सबसे पहला आता है यूएन पीस कीपिंग मिशन का कि भाई कैन वी एड examples in intro like peacekeeping forces. हाँ, but why would you want to add it in the introduction itself? उसको रख दो, बॉडी के लिए ऐड करो ना यार. इंट्रोडक्शन में क्यों डालोगे? डालना है तो डाल सकते हो, बट इट्स मच बेटर टू एड इट इन द बॉडी ऑफ द. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ, जैसे सेकेंड पैरा में मैंने सिग्निफिकेंस की बात कर रही हूँ. सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो इट इज वेरी सिंपल. पहला ही सिग्निफिकेंस आ जाएगा कि यूएन पीस कीपिंग जो होगा वो हेल्प करेगा इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. सबसे इंपॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंस होता है वो है फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. ठीक है. क्योंकि क्या हो गया कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म होके सीज फायर हो गया, वो सीज फायर ना टूटे उसके वजह से यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस आ गई हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये. तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल पीस कीपिंग फोर्सेस इन साइप्रस. तो सोमेश ये जो एग्जाम्पल्स आप बोल रहे हो ये इस पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट करके बोल सकते हो. या यूनिफिल जो कि आपका लेबनान और इजराइल के बॉर्डर्स में है, या आप गोलान हाइट्स की बात कर सकते हो. तो ऐसे कई यूएन पीस कीपिंग है जो सिग्निफिकेंस को सपोर्ट करने के लिए डालो, इंट्रोडक्शन में मत डालो. तो पहले कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए है. दूसरा है जो माइनॉरिटीज और वीक पॉपुलेशन है जैसे कि वुमेन एंड चाइल्ड, इनके प्रोटेक्शन के लिए पीस कीपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि वॉर के बाद लूटिंग होती है. वॉर के समय पे इमोशंस आर सो हाई, लूटिंग रेडिंग सब कुछ होता है. इसकी वजह से माइनॉरिटीज एज वेल एज लेट्स से वुमेन एंड चाइल्ड आर टारगेटेड. जैसे कि बांग्लादेश में जब वायलेंस हुआ इसके बाद इमीडिएटली क्या हुआ, यू विल सी एन अटैक अगेंस्ट द माइनॉरिटीज. यही चीज यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस रोक सकती हैं अगर उनका प्रेजेंस है तो. ठीक है. तो ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है ऑफ द यूएन पीस कीपिंग मिशन. द थर्ड यूएन पीस कीपिंग मिशन के लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है कि भाई देयर इज अ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द कंट्रीज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूएन इन रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है. क्या हो रहा है यहाँ पे, हर कंट्री जो यूएन का मेंबर है थ्रू द यूएन पीस कीपिंग मिशन इज ट्राइंग टू हेल्प रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट. फॉर एग्जाम्पल द यूएन पीस कीपिंग फोर्स इन रुवांडा. तो रुवांडा में जब सिविल वॉर हो रहा था, रुवांडा के सिविल वॉर को रोकने के लिए हर कंट्री कुछ ना, एवरीबडी वाज क्रिटिसाइजिंग कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, जेनोसाइड हुआ था वहां पे. तो फाइनली जब यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस पहुंची थी, इट वाज अबाउट हाउ यूएन एज अ मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन was able to at least maintain that peace and resolve that conflict. ठीक है. तो यहाँ पे आप ग्लोबल पार्टिसिपेशन जरूर देख रहे हो टू रिजॉल्व और टू स्टॉप अ कॉन्फ्लिक्ट. तो दिस इज अबाउट द यूएन पीस कीपिंग मिशन. अब द नेक्स्ट दैट इज माय सेकंड पैरा. थर्ड पैरा मैं आने वाली हूँ इंडिया के रोल के बारे में. तो यार इंडिया का जो रोल है सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्री. इंडिया
का जो ट्रूप कंट्रीब्यूशन है वो इधर नंबर 1 में रहता है या नंबर 2 या नंबर 3 पे. इट्स ऑलवेज द फर्स्ट टॉप 3. ठीक है, तो टॉप 3 कंट्रीज के बीच में होता है इंडिया. सो पहला ही है कि इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज in the UN peacekeeping mission. So India के जो soldiers हैं, they are about 72 UN missions के में participate किए हैं. 72 UN peacekeeping missions पे. That's a big number that we talk about. So it's one of the largest troop contributing country. Second जो चीज है इंडिया ने जो major contribution किया है वो है women soldiers का contribution. So India was one of the first global south countries जिन्होंने women soldiers जहाँ पे women soldiers का contribution किया था as part of the troop, and that basically meant that the UN peacekeeping mission जो था वो gender sensitive हो जाए, gender egalitarian हो जाए. ठीक है, सो इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट ग्लोबल साउथ कंट्रीज टू डू सो. आज भी मेजर मिशंस में वुमेन सोल्जर्स ऑफ इंडिया डू पार्टिसिपेट. तीसरा चीज जो आता है इंडिया जो करता है यूएन पीस कीपिंग में, दैट India is also considered, because we have one of the largest standing army and everything, we are very well renowned across the world for our military training. तो यूएन पीस कीपिंग का भी जो ट्रेनिंग एलिमेंट है वो इंडिया कई बार कई जगह पे करता है. फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट यूनिफिल जो इंडिया इजराइल और लेबनान के बीच में है, उसका जो ट्रेनिंग होता है और उसके जो लीडरशिप है, यूएन पीस कीपिंग मिशन का जो लीडरशिप वो एक्चुअली इंडियन है. द इंडियन ट्रूप्स आर लीडिंग दैट. सो वहां पे आपको दिखेगा ट्रेनिंग एंड लीडरशिप ऑफ द इंडियन ट्रूप्स दैट आर डूइंग इट. तो कई जगह पे इंडिया ने वो किया हुआ है दैट इंडिया का जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है इज फॉलोड थ्रू. ठीक है, सो इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड नॉट ओनली जस्ट बाय ट्रूप कंट्रीब्यूशन, वुमेन ट्रूप कंट्रीब्यूशन, बट आल्सो इन ट्रेनिंग ऑफ द ट्रूप्स ड्यूरिंग द पीस कीपिंग मिशन. जो चौथा ये है, जब आप ट्रूप्स दे रहे हो और ये एक वॉर लाइक सिचुएशन है जहां पे कॉन्फ्लिक्ट है, पीस कीपिंग द सीज फायर कैन कभी भी हट सकता है. इजराइल और लेबनान के बीच में जो यूनिफिल है, हिजबुल्लाह बॉम्बार्ड कर ही जा रहा है, उसमें कई लोगों की जान जाती है. तो ट्रूप्स, इंडियन ट्रूप्स की भी जान गई है. तो इंडियन सोल्जर्स हैव सैक्रिफाइस्ड फॉर द यूएन पीस कीपिंग मिशन. ठीक है, एक चीज होता है जब आप देश के लिए जान देते हो, दूसरा चीज होता है जब किसी और देश को प्रोटेक्ट करते हो या इंटरनेशनल पीस को प्रोटेक्ट करते हो. ये बहुत ही अलग चीज होता है. नोबडी अप्रिशिएट्स, हमारे यहाँ पे कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता है कि अरे वो यूएन पीस कीपिंग में जाके ही हैज लॉस्ट हिज लाइफ और शी हैज लॉस्ट हिज लाइफ, हर लाइफ. बट lot of Indian soldiers have died, have lost their lives in such peacekeeping mission. So around 170, 180 Indian soldiers have died. ठीक है, तो ये एक कंट्रीब्यूशन है इंडिया का कि हमारे सोल्जर्स नॉट ओनली द लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग बट वी हैव आल्सो फॉट फॉर द कॉज ऑफ इंटरनेशनल पीस. तो ये इंडिया के कंट्रीब्यूशन में काउंट करना पड़ेगा आपको. नाउ apart from this, India has always supported peacekeeping mission as well as UN's role in peacekeeping globally. Conclusion में यही लिखोगे और ये लिखोगे कि India has continued to be a big support for UN peacekeeping. That's it. इतना लिख के खत्म कर देना है. 10 मार्कर है, सिग्निफिकेंस और इंडिया कंट्रीब्यूशन लिखते लिखते ही पॉइंटर्स खत्म हो जाएंगे. तो 3-4 करके लिखोगे तो पॉइंट्स आर डन. ओके, नाउ let me come down to the fourth question. But before I come to the fourth question, आप में से किसी को कोई question है at this point of time? If you have any questions, you can write. Ma'am, does that mean Global North also? वुमेन पार्टिसिपेशन, ग्लोबल नॉर्थ के कंट्रीज स्पेशली इजराइल ने भेजा था, स्वीडन ने भेजा हुआ है वुमेन पार्टिसिपेशन इन यूएन ट्रूप की कंट्रीब्यूशन में. बट सोमेश, द नंबर ऑफ वुमेन वेर वेरी फ्यू बिकॉज वो लोग इतना ट्रूप्स भेजते नहीं है, वो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करते हैं. सो फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वेजियन कंट्रीज लार्जली दे डिड सेंड वुमेन सोल्जर्स, बट नंबर्स बहुत कम थे. जब मैं ये बोल ही रही हूँ कि इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, तो ऑब्वियस में अगर मैं 1000 ट्रूप्स भेज रही हूँ, वहां से मैं अगर 300 वुमेन सोल्जर्स भेज रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली द नंबर ऑफ
women Indian soldiers in the UN peacekeeping become substantially more than any other country. That is what the difference is. But if you're talking about कौन सबसे पहले भेजा था, तो ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज ने भेजा था, क्योंकि इवन इन इंडिया वुमेन पार्टिसिपेशन इन द मिलिट्री केम इन मच लेटर. उससे पहले दूसरे कंट्रीज में वुमेन इन द मिलिट्री हैड ऑलरेडी स्टार्टेड. दैट इज नॉर्वेजियन कंट्रीज में तो बहुत पहले से था. उसके अलावा आपके सिंगापुर में था, तो कई सारे कंट्रीज में वुमेन पार्टिसिपेशन आपको दिखता है. टर्की में था, तो टर्की के काफी ट्रूप कंट्रीब्यूशन में दे वेयर वुमेन हु हैड कंट्रीब्यूटेड टू द यूएन पीस कीपिंग मिशन. ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे यूनेस्को का. यूनेस्को एम्स टू एम्पावर द यूथ टू प्ले अ कॉन्क्रीट रोल इन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज. How can this be an opportunity, especially in the interest of India? ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. UNESCO aims to empower the youth to play a concrete role in tackling climate change. How can this be an opportunity, especially in the interest of India? So if I have to write this answer, मेरा पहला स्टेटमेंट इन द इंट्रोडक्शन वुड बी अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ यूनेस्को. ठीक है, मेरा यूनेस्को है क्या उसके बारे में मैं इंट्रोडक्शन में लिखूंगी, जहाँ पे आई विल टॉक अबाउट कि यूनेस्को किस चीज़ पे काम करता है, क्या है. तो इंट्रोडक्शन में 2-3 लाइन अबाउट यूनेस्को शुड बी गुड. उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पैरा रहेगा वो रहेगा कि किस तरीके से यूनेस्को क्लाइमेट चेंज को टैकल कर रहा है. यूनेस्को किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को टैकल कर रहा है, उस चीज को मैं सेकंड पैरा में डालूंगी. तो जैसे कि मैं आई विल टॉक अबाउट लिटरेसी प्रोग्राम्स. ठीक है, यूनेस्को के जो लिटरेसी प्रोग्राम्स है जिसके अंडर पे इट इज यूजिंग सोशल मीडिया एंड अदर काइंड्स ऑफ मीडियाज, जिसके थ्रू में यूथ को अवेयर करवाया जा रहा है. यूनेस्को इज ट्राइंग टू मेक द यूथ to be aware of what is happening in the world around them, especially about climate change. तो लिटरेसी इंप्रूव करने के जो मीडियम्स हैं उस पे मैं पहला पॉइंट डालूंगी. दूसरा चीज जो आ रहा है लिटरेसी के बाद, द काइंड ऑफ स्किल ट्रेनिंग या कैपेसिटी बिल्डिंग जो यूथ को दिया जा रहा है आज के दिन पे, टू वर्क इन अ सस्टेनेबल मैनर सो दैट क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जाए, उस पे फोकस किया जा रहा है. राइट, सो छोटी छोटी चीजें जैसे कि आप रिन्यूएबल एनर्जी कैसे आप हार्नेस कर सकते हो, या आप कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग के बेसिस पे हाउ यू कैन गेट इनटू सर्टेन काइंड ऑफ जॉब्स एंड हाउ यू कैन गेट इनटू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बेस्ड ऑन दिस. तो having small startups or having small enterprises that is helping in job generation, that is helping in skill building, capacity enhancement. ये सारे चीजें से क्या कर रहे हो आप यूथ को empower कर रहे हो that they do something about the environment, about the world around them. ये अगर आप मतलब if you think from this perspective that यार unemployed youth, most of them, if you're talking about unemployed youth in the global south countries, they will never be able to have a literacy access, learn about what is climate change, or kind of take actions for that. एंड तीसरा चीज है यार, वो लोग पॉवर्टी लाइन के हमेशा बिलो रहेंगे, एंड पॉवर्टी लाइन के बिलो पे आप क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट नहीं गॉज कर पाओगे. वो लोग because they are below poverty line, because they don't have employment generation, simple सी बात है, वो लोग तभी भी वो लकड़ी जला के खाना बनाएंगे, because they don't have access of any kind of employment to get money to get a proper चूल्हा, नहीं आ पाएगा. तो क्लाइमेट चेंज अगर आप वहां पे ट्रांजिशन करवाने की कोशिश कर रहे हो तो आपको यूथ को पॉवर्टी लाइन से ऊपर करना पड़ेगा, जो कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्किल बिल्डिंग या कैपेसिटी एनहांसमेंट से ही कर पाओगे, वरना वो पॉवर्टी लाइन के अंडर ही रहने वाला है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ की हम बात कर रहे हैं. So if you are talking about climate change, you have to bring them up before, above the poverty line, so they can stop such practices which are impacting the climate change.
ठीक है. So that is the second point that UNESCO is trying to do. And the third thing is that it has started with something called the young leadership camp. ठीक है. तो यंग लीडरशिप कैंप एक यूनेस्को ने स्टार्ट किया हुआ है. एंड द आइडिया इज वेरी सिंपल ऑन दिस कि यूथ को एज अ लीडर बनाया जाए टू टैकल क्लाइमेट चेंज, ताकि द नेक्स्ट जनरेशन इज फार मोर अवेयर ऑफ the impact of climate change than the existing generations. तो ये कुछ चीजें यूनेस्को ने किया है. तो लिटरेसी, जॉब जनरेशन, स्किल बिल्डिंग, कैपेसिटी एनहांसमेंट ऑफ यूथ, एंड तीसरा चीज आता है आपका यूथ यंग लीडरशिप कैंप्स. नाउ ये तीनों चीजें यूनेस्को ने यूथ को एम्पावर करने के लिए किया है. अब ये अपॉर्चुनिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया क्या आता है यहाँ पे यार. नाउ even if you don't remember कि यार क्या यूनेस्को ने किया है, यहाँ पे तुक्काबाजी आराम से लग जाएगा. If I ask you, if you have not read the answer, तुक्का लगा के बताओ क्या इंटरेस्ट ऑफ इंडिया में आने वाला है. पहले तो बताओ लिटरेसी से क्या होगा. जो यूनेस्को का लिटरेसी का आइडिया है कि मीडिया के थ्रू में और दूसरे मीडियम्स के थ्रू में लिटरेसी आप करोगे, उससे क्या होने वाला है. What will happen to the youth of India? How is it in line with the interest of India? ये बताओ. I'm asking you to just take a guesswork. तुक्का लगाओ इसमें. अगर आता है पॉइंट तो अलग बात है, बट अगर नहीं आता है तो इसमें मैं इसीलिए आई वांट यू टू डू द गेस वर्क एंड कम अप विद सम लॉजिकल आर्गुमेंट्स. reap benefits of demographic dividend. ठीक है. Okay, Kanishk, what else? कनिष्क, एक चीज है जो आप पॉइंटर्स बता रहे हो, क्लाइमेट चेंज के साथ करो. पहला ही चीज यार, लॉजिक लगाओ यार इसमें. पहला चीज क्या हो रहा है, इंडिया ट्रांजिशन कर रहा है नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल एनर्जी पे. तो सोमेश का जो आर्गुमेंट है उसको मैं कैसे लिखूंगी. पहला ही चीज मैं लिखने वाली हूँ कि बिकॉज इंडिया एज अ ग्लोबल साउथ कंट्री इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल एनर्जी, awareness about sustainability would be important. UNESCO's literacy steps would be an asset to India's youth. ये मेरे लिए पहला पॉइंट हो गया, लिटरेसी के साथ मैंने लिंक कर दिया. ठीक है. दूसरा पॉइंट में यहाँ पे आई विल टेक इन आदित्या's पॉइंट हियर. आदित्या's पॉइंट का क्या है, बर्थ रेट कंट्रोल, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को मैं लेके आ जाती हूँ. ठीक है. तो ये मैं फिर से आई एम गोइंग टू गेट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लिटरेसी ओनली. ठीक है. अवेयरनेस जितना आएगा उतना ही आप फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया आप बर्थ रेट कंट्रोल कर पाओगे, आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर पाओगे. अगेन लिंक टू अवेयरनेस, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यूनेस्को इज डूइंग. अब मैं अगर स्किल बिल्डिंग या कैपेसिटी एनहांसमेंट की पॉइंट पे आती हूँ तो वहां पे आई विल टॉक अबाउट द फैक्ट दैट मोर एंड मोर स्किल बिल्डिंग वुड मीन व्हाट, पीपल वुड हैव आत्मनिर्भरता, will be in line with having their own enterprises, employment generation, which would also indicate that there will be social flux, in which case there will be better utilization of resources as a global south country. तो यूथ का जो आपका मूवमेंट फ्लक्स रहेगा वो हमेशा बेनिफिट करेगा, हमेशा एक तरीके से ये बेटर होगा, नॉट ओनली फॉर द सोसाइटी बट ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनवायरमेंट कंजर्वेशन, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ट्रांजिशनिंग दैट इंडिया इज डूइंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है.
तो इट इज ऑल ऑफ दिस इज बेसिकली पार्ट ऑफ एन इंटरेस्ट ऑफ इंडिया. एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे देना है, आज के दिन पे इंडिया क्या कर रहा है, कह रहा है, इंडिया कह रहा है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है कि अगर आप सोलर पैनल्स लगाते हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है वो सोलर पैनल्स लगाने के लिए. ठीक है, हाँ एब्सोल्युटली यू कैन. तो सोलर पैनल्स लगाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रहा है. बट अगर लोग अवेयर नहीं रहेंगे, लोगों को पता नहीं रहेगा, तो कहां से ये ट्रांजिशन होगा? So, and Indian government cannot be the only way to have that awareness mission. If UNESCO is able to do it, if UNESCO is able to generate, kind of skill building, जहाँ पे लोग इस solar technology को use करके कुछ अच्छा कर पाए, then it is going to be beneficial for the society as well as moving towards renewable energy. तो अगेन थिंक इट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि यार जॉब जनरेशन हो रहा है, लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर सकते हैं, रिसर्च हो सकता है, यूथ कैन बी अ लीडर इन द R&D ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, यूथ कैन बी अ लीडर इन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज. ईवी में कुछ इंडिया कर सकता है. व्हाई शुड इंडिया जस्ट बी असेंबलिंग? ईवी में भी कुछ कर लेगा, मैन्युफैक्चरिंग का कुछ हो जाएगा, कुछ हम ब्रेक थ्रू कर पाएंगे R&D के थ्रू पे. तो यूथ लीडरशिप प्रोग्राम हमें ये करके दिखा देगा. तो यूनेस्को ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है इंडिया को कि जहां पे इंडियन यूथ कैन ऑल्सो नॉट ओनली बी अवेयर बट ऑल्सो हैव जॉब्स बट ऑल्सो बी अ लीडर इन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज. ये तीनों चीजों जो मैंने बोला है उसी के साथ एग्जाम्पल्स के थ्रू में आप इसको सपोर्ट कर पाओगे कि हाउ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, सो बेसिकली अवेयरनेस के थ्रू आ रहा है, जॉब जनरेशन के थ्रू आ रहा है और लीडरशिप R&D. So research and development के through में India can be the next country to have a breakthrough in renewable energy, right? In some kind of an EV machine or in some kind of hydrogen, what is it? Hydrogen what? Fuel. Something like that, which green hydrogen fuel, something like that, which we can use in tackling climate change. So this is where this is an opportunity. ये अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है, ये आपको एज एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया. फाइनली व्हेन यू राइट अबाउट द कंक्लूजन में आपको ये लिखना है कि वही बात कि इंडिया ट्रांजिशन कर रहा है एंड यूनेस्कोज एम्स आर इन लाइन विद इंडियाज इंटरेस्ट्स. इंडियाज यूथ आर as part of India's demographic dividend, the youth bulge is going to be or is an asset for India in current generation. This is the time for India to have or realize its aspirations. यहाँ पे यूथ वाला भी बात कर लिया आपने, क्लाइमेट चेंज वाला बात भी कर दिया. दैट इज बेसिकली ये इन सिंक है आज के दिन पे. ठीक है, तो जब आपके पास पॉइंटर्स नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड कि इस क्वेश्चन में आपके पास पॉइंटर्स नहीं रहेंगे बिकॉज हाउ कैन दिस बी एन अपॉर्चुनिटी पूछा गया है, तो इसमें दिमाग में आपको खुद ढूंढना पड़ेगा. तो वहां पे लॉजिकल गेसवर्क पे डालो. जो आप लोग एकदम पिन पॉइंट आंसर्स दे रहे हो ना, वो पिन पॉइंट आंसर्स एग्जाम्पल की तरह बना दो, विच विल ऑलवेज हेल्प इन गेटिंग योर आंसर इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर. ठीक है, जॉइंट लिखो यार. अवेयरनेस से क्या होने वाला है, जॉब जनरेशन से क्या होगा, लीडरशिप से क्या होगा, सेम चीज एज एन अपॉर्चुनिटी लिख दो, खत्म. ठीक है, सो दैट इज अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 4. दिस इज हाउ आई वुड सॉल्व दिस क्वेश्चन. आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में. ये काफी रटा पिटा क्वेश्चन है यार. आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस क्वेश्चन. A robust dispute settlement mechanism is imperative for effective functioning and credibility of WTO. In this context, how is the revival of the WTO's appellate body crucial for India? ये बहुत ही रटा पिटा क्वेश्चन है. ठीक है कि भाई appellate body का क्या है क्या नहीं है. ये आई एम श्योर आपने ये फाउंडेशन बैच में किया होगा, आपके पास इसका पूरा रटा रटाया नोट्स बने पड़ेंगे. तो इसको अगर तभी भी आई हैव टू स्ट्रक्चर इट. मेरा इंट्रोडक्शन रहेगा कि भाई WTO का काम क्या है. मेरा पहला 2 लाइन रहेगा भाई WTO करता क्या है, WTO का इंपॉर्टेंस क्या है. दूसरा जो मेरा रहेगा सेकंड पैरा, इसमें रहेगा कि यार डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म क्यों जरूरी है WTO में. व्हाई इज अ डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म इंपेरेटिव,
क्योंकि ये स्टेटमेंट जब दिया गया उसको लिखना भी जरूरी है कि क्यों है इम्पोर्टेंट। तो चाहे हम बात करते हैं कि भाई इट हेल्प्स इन ओपन ट्रेड between all members, resolving trade disputes, उसके बाद diversity in alternative dispute settlement, ये सारे चीजें आप importance वाली चीजों आपको आप लिख सकते हो. Should be around 4 to 5 points about it. The next is revival, that is revival of the WTO's appellate body. Crucial क्यों है? How is it crucial? इसके basis पे भी अगर आप लिखोगे तो इसमें it will help in more dialogues to resolve disputes, existing disputes. उसके अलावा effective multilateralization पे आता है. तीसरा है कि भाई जो इंडिया का एक्शन प्लान था जो इंडिया ने दिया था कि किस तरीके से एपेलेट बॉडी क्रूशियल है, जहाँ पे इंडिया ने कहा था कि भाई WTO को रिफॉर्म करना पड़ेगा ग्लोबल साउथ कंट्रीज के इंटरेस्ट के बेसिस पे. वो चीज भी आप लिख सकते हो कि भाई ग्लोबल साउथ का पॉइंट्स भी तो लेना पड़ेगा. एंड दिस इज हाउ यू कैन राइट द थर्ड पैरा. एंड फोर्थ पैरा इज दैट आज के दिन WTO ऑलमोस्ट इट्स ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग an ineffective body as long as the appellate, the dispute settlement mechanism is not functioning. To be more equitable and effective, it should have a strong appellate body. ऐसे करके आपने इसको कंक्लूड कर दिया है. इट्स अगेन वेरी रटाया क्वेश्चन है यार. इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये. इसमें इतना दिमाग लगाने की बात ही नहीं आती है. ठीक है, आते हैं 6th वाले क्वेश्चन में. इंडिया UAE रिलेशंस. ये क्या हो गया? Why is this not coming? India UAE relations are a display of shared heritage of humanity, maritime trade and a robust diaspora. ठीक है. How is SEPA acting as a growth engine in India's bilateral ties? ठीक है, तो यहाँ पे अगेन 15 मार्कर है. तो मेरा जो पहला इंट्रोडक्शन रहेगा वो ये रहेगा कि भाई इंडिया UAE रिलेशंस के बारे में. सो आई कैन ईदर स्टार्ट विथ करंट अफेयर्स हियर. मेरे पास ऑप्शन है कि मैं करंट अफेयर्स से स्टार्ट करूं, ये कह के कि यारे लास्ट ईयर देयर हैव बीन मल्टीपल विजिट्स बिटवीन इंडिया एंड UAE, पॉलिटिकल विजिट्स व्हिच हैव एनरिच्ड द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड UAE. तो मैं इससे स्टार्ट कर सकती हूँ. दूसरा चीज मैं ये लिख सकती हूँ कि भाई ओवर द एजेस या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया एंड UAE हैव built a strong relation based on mutual friendship and strategic interest. मैं ऐसे करके भी स्टार्ट कर सकती हूँ. एक जेनेरिक तरीका है और एक करंट अफेयर्स बेस्ड तरीका है. दोनों तरीका यहाँ पे चालू हो सकता है, लग सकता है when it comes to these kind of questions. मैंने आफ्टर माई इंट्रोडक्शन मैं सेकेंड चीज जो लेके आऊंगी, अगेन आई टॉक अबाउट द रिलेशंस जो कि शेयर्ड हेरिटेज है, मैरीटाइम ट्रेड एंड रोबस्ट डायस्पोरा. इन तीनों पॉइंट्स को मैं समझाने वाली हूँ कि जैसे कि शेयर्ड हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब क्या है हमारा सिविलाइजेशनल टाइज, चाहे हम ब्रिटिश पीरियड की बात करें या उससे पहले भी हमारा एक ट्रेड रिलेशन रहा है. वी हैव हैड civilizational links with UAE. ब्रिटिश पीरियड में भी इट वाज, हाँ, तो हड़प्पा एरा से लिख सकते हो. यू कैन देन टॉक अबाउट ड्यूरिंग योर एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड, जो भी आपको एग्जांपल्स देने आप लिख सकते हो. सिविलाइजेशनल लिंक्स था. कॉलोनियल पीरियड में भी वी हैड स्ट्रॉन्ग रिलेशंस विद ओमान एंड UAE. एंड देन फाइनली कमिंग टू द पॉइंट दैट आज के दिन दिस सिविलाइजेशनल लिंक इज सीन in a strong relation. For example, you can talk about दो चीज you can talk about. You can talk about the BAPS temple जो अभी हुआ है, राइट. BAPS temple के बारे में आप लिख सकते हो कि जहाँ पे कल्चरल हेरिटेज इज बीइंग सेलिब्रेटेड. दूसरा आप लिख सकते हो कि दैट UAE में because UAE has always had cultural relations with India, civilizational relations with India, there has been a historic acceptability of India's diversity. ठीक है, कभी भी it has never been about
not allowing Indian festivals or anything like that. तो काफी सेलिब्रेट किया गया है in the form of सिविलाइजेशनल या कल्चरल कॉनोटेशंस को. इसका एग्जाम्पल क्या देंगे? इसका एग्जाम्पल देंगे कि इंडिया का जब जब कोई भी फेमस पर्सन हैज बीन एक्सीलेंट एट हिज आर्ट or cultural activity, they have got citizenship of UAE. UAE has always opened its doors for Indians to come for business opportunities. तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो जहां पे you can talk about a shared heritage. ठीक है. Maritime trade की बात करें तो यार सबसे पहला ही है large trade. Yes, absolutely. But large trade आप यहाँ पे लिखोगे ना maritime trade में. You're going to talk about large trade right here. So you can talk about strategic location of UAE, and you can then talk about a large trade of between India and UAE. You can also talk about the fact that there is IMEC, everything, connectivity. All of this then can come as part of the maritime trade. ठीक है. एंड नेक्स्ट कमिंग टू रोबस्ट डायस्पोरा. रोबस्ट डायस्पोरा की अगर हम बात करते हैं तो रोबस्ट डायस्पोरा में इंडियन डायस्पोरा का जो रोल रहा है, सो इंडियन लार्ज कम्युनिटी है, राइट. इंडिया का काफी लार्ज कम्युनिटी है. दूसरा आपका आ जाता है कि इट्स अ ब्लू कॉलर्ड लेबर, तो मोस्ट ऑफ द लेबर इंटेंसिव वर्क is done by the Indian diaspora. Remittances वापस आती हैं वहां से, and it has helped in a lot of. So Indian diaspora is involved in a lot of infrastructural building of UAE. तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो as part of the robust diaspora. Now, the next point is then coming to SEPA. कि SEPA कैसे एक growth engine है for India UAE relations. सबसे पहले तो SEPA के basis पे आपको यहाँ पे you have to talk about how it has given an economic boost, right? You can talk about how the SEPA has increase the trade value between India and UAE. जहां पे आप लिख सकते हो कि भाई 1970 में एक समय था जहां पे it was about 180 million, right? वो धीरे धीरे बढ़ता गया, but now we are talking about 85 billion and UAE is India's third largest trading partner. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट है बताना कि भाई सेपा के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन यूएई इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है. ओके. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सेपा में और एक क्या हुआ है, सेपा हैज रिड्यूस्ड टैरिफ्स ऑन a lot of goods and items. So basically tariff reduction हुआ है. आज के दिन पे इंडिया can export textiles एंड जेम्स, जो जेमस्टोन्स होती है ज्वेलरी वाले, वो एट अ लोअर टैरिफ, क्योंकि टैरिफ ड्यूटीज कम हुई हैं. ऑन द अदर हैंड यूएई अपने पेट्रोकेमिकल चीजें भेज सकता है इंडिया को एट अ लोअर टैरिफ. तो टैरिफ रिडक्शन हैज बीन सीन एज पार्ट ऑफ सेपा. उसके अलावा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ा है, उसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड हुआ है. तो कुछ कुछ जो चीजें हुई हैं, यूपीआई, हाउ कैन वी फॉरगेट, डिजिटलाइजेशन पे बात हुआ है जहां पे रूपे विल बी एक्सेप्टेड. तो ये 4 पॉइंट्स हैं. Tariff reduction, increase in trade, digitalization, that is UPI as well as RuPay, as well as more diversification of trade goods. That is where you have SEPA का boost जो आ रहा है India UAE relations पे. तब पर SEPA can boost confidence among. No. Question देखो, how is SEPA acting as a growth engine in the India UAE bilateral ties? ये इंडिया यूएई बायलैटरल टाइज के बारे में बोल रहा है. ये नहीं कह रहा है कि किस तरीके से ये कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकता है अमंग अदर कंट्रीज. ये नहीं पूछा जा रहा है तपस. इंडिया यूएई रिलेशंस को कैसे इंप्रूव किया जा सकता, क्या किया है सेपा ने, वैसे पूछा है. तो ये 4-5 पॉइंट्स आप दे सकते हो, सेइंग दैट दिस पर्टिकुलर अग्रीमेंट हैज इंप्रूव्ड इंडिया यूएई ट्रेड रिलेशंस. ठीक है. अब आते हैं योर कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हो कि सेपा के वजह से आज के दिन इंडिया यूएई में कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं विच आर बेसिकली लीडिंग टू
UAE not only becoming a trade partner or an infrastructural partner, but also a strategic partner in the region, which will be an asset for India's growth in the coming years. ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो कि जो इंडिया का ग्लोबल एस्पिरेशन होगा उसमें ऐसे अग्रीमेंट्स या ऐसे पार्टनर्स एक एसेट ही होता है. ऐसे मैंने कंक्लूड कर दिया इस क्वेश्चन को. ठीक है, दिस इज हाउ आई विल conclude my question on this. Okay, now let me come down to the seventh question. Seventh question is the current composition of the UNSC. The current composition of the UNSC no longer aligns with the realities of our interconnected and multipolar world. The current compositions of the UNSC no longer aligns with the realities of our interconnected and multipolar world. Explain in the context of India's pursuit for a permanent seat in UNSC. यार ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, और इतना बेसिक क्वेश्चन अगर पूछ लिया यूपीएससी ने, देन तो यू आर लकी, क्योंकि मुझे पता है कि इसके सारे, अगेन दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू वुड हैव प्रिपेयर्ड. तभी भी लेट्स जस्ट गो ओवर इट एक बार, ताकि इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड ऑल्सो तभी भी थोड़े पॉइंट्स आपके दिमाग में रह जाते हैं. तो सबसे पहले है कि यूएनएससी का इंपॉर्टेंस क्या है, या इंट्रोडक्शन में मैं लिखूंगी यूएनएससी क्यों बना था. ठीक है, तो सिग्निफिकेंट ऑर्गन है, डिसीजन मेकिंग ऑर्गन है, एंड इट हैज बीन टास्क्ड टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. ये मेरा इंट्रोडक्शन में आ जाएगा. दूसरा मेरा जो पैरा होगा वो ये रहेगा कि भैया क्यों ये अलाइन नहीं करता है आज के दिन with the reality, current global reality साथ क्यों इंटरकनेक्ट नहीं है. तो इट इज अंडर रिप्रेजेंटेड. तो इंडिया, अफ्रीका, दे हैव नो रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ यूथ है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ट्रेड हो रहा है, वो उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है. दूसरा है कि ये कोल्ड वॉर मेंटालिटी को दर्शाता है. कोल्ड वॉर मेंटालिटी को कैसे दर्शाता है, अभी भी वही पावर्स पावरफुल हैं जो कि उस कोल्ड वॉर के समय पे पावरफुल है. आज के दिन जो रीजनल पावर्स है उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है. तीसरा है कि इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, जहां पे इट इज गिविंग द राइट ऑफ कंट्रीज ऑन अ कि कौन आने वाला है नहीं आने. देयर इज नो इलेक्शंस आउट हियर, जो है वही है. तो डेमोक्रेसी करते रहते हैं हम लोग, बट इट इज नॉट गिविंग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को सपोर्ट ही नहीं करता है. अगर ये है तो भाई इलेक्शंस करवा लो, जो जिनको मिलेगा वो यूएनएससी का मेंबर रहेगा. साइक्लिकल वर्जन में रख सकते हैं. चौथा क्या है कि भाई जो आज के दिन जो इमर्जिंग नॉन सिक्योरिटी या सिक्योरिटी थ्रेट्स है, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे टेररिज्म हो, द प्रॉब्लम देयरफॉर इज दैट इनको टैकल करने के लिए देयर इज नो न्यू मैकेनिज्म ऑफ द यूएनएससी. वही कंट्रीज हैं, वही मेथड्स ऑफ डिस्कशन है. आज तक यूएनएससी कोई भी वॉर रोक नहीं पा रहा है, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो या इजराइल पैलेस्टीनियन हो. सो इट इज नॉट रियली इफेक्टिव इन अदर वर्ड्स. तो ये चैलेंजेस हैं. इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग द जियोपॉलिटिकल रियलिटीज. अब आते हैं कि कैसे इंडिया बोल रहा है कि भाई हमें इंडिया को देना चाहिए परमानेंट सीट. तो सबसे पहला है कि इंडिया का जो जियोपॉलिटिकल इमेज है, इट इज अबाउट अ कंट्री विच हैज ऑलवेज सपोर्टेड इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी. चाहे हम कोल्ड वॉर के समय की बात करें जब नाम फॉलो करते थे, या आज के दिन की बात करें जहां पे हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी फॉलो करते हैं, वी हैव ऑलवेज सपोर्टेड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. दूसरा, हम एक रिस्पॉन्सिबल पावर है. Right, we are a responsible power in the sense that we have always been the voice of the global south. We have always talked about balancing rather than choosing sides. We have also talked about that this is not the era of war. Dialogue and diplomacy के through में इसको end करना है. Right, so that is the third point you can talk about. Contribution in peacekeeping missions के बारे में बात कर सकते हो. You can talk about economic growth of India, you can talk about the global aspiration, the G20 का leadership या most of the multilateral organization में participation. All of this basically ensures that India should be a part of the permanent seat in UNSC. अब आते हैं, ये आपके 5-6 पॉइंट्स होंगे यहाँ पे. अब आते हैं आपके कंक्लूजन में. सोमेश G4 में कंक्लूजन में लेके आऊंगी, क्योंकि G4 का क्वेश्चन है ही नहीं है.
अब मैं जब कंक्लूजन में लेके आऊंगी, कंक्लूजन में मैं ये डालने वाली हूँ कि भाई रिफॉर्म्स ऑफ द यूएनएससी इज अ मस्ट। ओके, मैं यहाँ पे कंक्लूजन में लेने वाली हूँ कि यार रिफॉर्म्स तो चाहिए होगा, वरना यूएनएससी इनइफेक्टिव हो रहा है। एंड रिफॉर्म्स शुड इंक्लूड countries of the G4 as well as African Union, and G4 countries mein India is a part of it. So India should be part of the permanent seat of UNSC. Majority of the countries, including countries or members of the P5, have supported India's candidature for the permanent seat in UNSC, except for a handful of countries, including China or Pakistan. तो आप ये लिख सकते हो कि भाई इंडिया का जो कैंडिडेचर है उसके लिए सब मोस्ट कंट्रीज ने सपोर्ट किया है, बट कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने सपोर्ट अभी तक नहीं किया है। तो ये मेरा कंक्लूजन रहेगा कि क्या रुकावट हो रही है इंडिया के परस्यूट में। रुकावट एक ही है, चाइना नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। तो रुकावट के लिए आपको वो वाली जो पॉइंट है वो आप यू कैन गेट इट इन योर कंक्लूजन। I'll repeat the conclusion. You can say that UNSC reforms are a must. It is important that countries such as the G4 countries as well as African Union should be made a member of the permanent seat. In case of India's candidature for a permanent seat, it has been supported by several countries, including America, France, UK, and so on. However, there are certain countries which have also put a challenge to this pursuit, including China. That's it. ये मेरा कंक्लूजन है, ताकि मैंने पूरा आंसर जो है मैंने ये बता दिया कि भाई क्या इंपॉर्टेंस है, इंडिया का क्या परस्यूट है, क्यों इंडिया को मिलना चाहिए, एंड फाइनली क्या चैलेंजेस है। सारे चीजें मेरे इस आंसर में आ जाएगा। ठीक है, सो माय कंक्लूजन देयरफॉर विल बी अ सॉलिड पैक्ड क्रिटिसिज्म कि क्या हो रहा है, इंडिया को क्यों नहीं मिल रहा है परमानेंट सीट। ठीक है, दैट इज हाउ विल राइट। ओके, any questions right now, because that's the last question for today, at least for IR DAW. कोई question है? Any questions? अगर नहीं है तो we'll end the class and we will get back at 2 o'clock to discuss internal security. So we'll do the DAW1 of internal security at 2 o'clock. 2 to 4 we'll do IS के DAW1. अभी के लिए कोई डाउट्स हैं IR के, बिकॉज IR मेरी तरफ से खत्म है फ्रॉम दी जो DAWs दिए गए हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं IR को रिलेटेड या IR से रिलेटेड या कोई भी कुछ पूछना है तो आई एम हियर, वरना वी कैन जस्ट एंड द क्लास एंड यू गाइस कैन गो ऑफ टू स्टडी फॉर योर आंसर राइटिंग टुडे। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, ओके, chalo then, let me end the class right now and I'll see you at 2 o'clock. If you are joining, हम internal security करेंगे of DAW1. Bye, take care.